Hello everyone. We are discussing nutrition in animals. In our last session, we have discussed up to the different mode of taking the food or different mode of feeding in different animals. So in this part 2 of nutrition in animals, chapter 2 of class 7, I am going to discuss the human digestive system. We take food through our mouth, digest and utilize it. The human digestive system consists of alimentary canal and associated digestive glands. So what is alimentary canal? Alimentary canal consists of various organs which are arranged sequentially. It starts with mouth and ends with anus. So, what are the organs? Mouth, then esophagus or food pipe, stomach, small intestine, large intestine, rectum, and then anus. Now, what is the other part? Alimentary canal and the associated digestive glands. What are associated digestive glands? The associated digestive glands are those glands which help in the process of digestion by secreting some fluids. So, what are the digestive glands? Salivary glands, which are located in the mouth or buccal cavity. Next is liver. It is the largest gland of our body and it is present in the upper part of our abdomen on the right side. Okay. Next, third gland is pancreas. It is present just below the stomach. And the ducts of these glands open into the alimentary canal and they transfer their secretion or the juices which helps in digestion into the alimentary canal. So this is the structure of digestive system. As you can see, that is it starts with buccal cavity. You can see the leveling. Then there is a pipe like structure. That pipe is called food pipe or esophagus. Then the esophagus opens into a shack like structure that is called stomach. Then stomach open into a tubular structure that is purple color, that is it is colored like stomach only, and that is the small intestine. The small intestine is much coiled. Okay, you can see the more coiled part, that is small intestine. Then the small intestine is opened into the large intestine. Okay, so large intestine, why it is large intestine? Because it is wider. It is wide. It is, but small intestine is longer than the large intestine. But why it is known as small intestine? Because it is narrow. Okay, and large intestine is called so because it is wider, but it is small in size as compared to the small intestine. Okay, now you can see the glands here. On the left side, liver, it is labeled as a liver. Liver is a triangular shaped gland. And then you can see the pancreas, a leaf like structure is present, that is pancreas. It is labeled on the right side. And then the salivary glands which are present inside the buccal cavity. So these are the basic structures of digestive system in human being. Now let us discuss the digestion process. So the digestion in human body starts in the mouth and ends in the intestine and small intestine, that too. We take food through our mouth and the process of taking food into the body is called ingestion, that we have already discussed in our session 1. The mouth or buccal cavity contains teeth, tongue and salivary glands. The digestion begins in the mouth when we chew the food with the help of our teeth. हम जब च्यू करते हैं तब भी से ही हमारा डाइजेशन शुरू हो जाता है. ये भी तो हम सिंपल कर रहे हैं फूड को. बड़े बड़े फूड पार्टिकल्स को हम टुकड़े टुकड़ों में काट रहे हैं विद द हेल्प ऑफ आवर टीथ. सो दिस इज अ प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, बट दिस इज मैकेनिकल प्रोसेस. इसमें कोई केमिकल प्रोसेस नहीं हो रहा है.
Then the teeth cut the food into smaller pieces, chew and grind it. Then chewing breaks down the food into smaller pieces and mixes them with saliva. हमारे मुंह में saliva होता है, and that saliva mixes with the food, and that mixing is done with the help of tongue. Okay, so chewing the food, breaking down the food and mixing it with the saliva, the whole process is called mastication. Then the salivary gland secretes watery liquid called saliva, and the saliva contains digestive enzyme or digestive juice that helps in digestion of the food. Then which food is digested? I have told you the components of the food. So the starch, that is a type of carbohydrate, is partially digested in the buccal cavity or mouth. Now what is the role of teeth? Teeth are used for cutting, grinding and tearing the food before you swallow it. And we have different types of teeth to do different job. So basically teeth are of two types. In lifetime, the teeth grows in human being twice. The first set of teeth that grows in a child are called milk teeth, and their number is 20, 10 in each jaw. एक jaw में ऊपर 10 और नीचे 10 होता है. Okay, so these teeth are called milk teeth, and they begin to fall at the age between 6 to 8, and then new sets of teeth grow, and that new set is called permanent teeth. अभी मेरा क्या है? परमानेंट टीथ है. आपका क्या है? परमानेंट टीथ है. लेकिन अगर ये 5 साल बच्चे का बोलेंगे तो उसका मिल्क टीथ होता है. 2 साल का बच्चे का बोलेंगे तो उसका मिल्क टीथ होता है. सो व्हाट आर परमानेंट टीथ? दिस इज द सेट ऑफ टीथ दैट कंटेन्स 32 टीथ. लेकिन 32 सभी का नहीं होता, बट 32 मैक्सिमम होता है. 16 इन ईच जो, ऊपर 16 नीचे 16. एंड देयर आर, ये जो टीथ है आपका 4 तरह के टीथ होते हैं. उसमें से 4 इंसीजर है, 2 कैनाइन है, 4 प्रीमोलर है और 6 मोलर है. ये एक जॉ में. तो आपको मैं दिखाती हूँ. ये है आपका 4 इंसीजर, ऊपर का ये 4 इंसीजर. देन उसके दोनों तरफ पॉइंटेड आप देख सकते हैं थोड़ा टीथ, वो है आपका कैनाइन. उसके बाद है आपका प्रीमोलर्स, देन मोलर्स. Your front teeth, as I showed you, that is as I have shown you, that is incisors. उसका काम क्या है? कटिंग. किसी फूड को कट करना है, बाइट करना है, तो इंसीजर से करना है. द नेक्स्ट कैनाइन. कैनाइन हेल्प्स इन टीयरिंग द फूड इनटू पीसेस. देन द मोलर एंड प्रीमोलर which are present here, their main function is to grind the food or chew the food. That's why they are known as grinding teeth. And our teeth is covered by a white color shiny substance that is called enamel. It is the hardest substance in our body. So here is the diagram of the teeth. So here you can see that is front में आपका देखो लेबलिंग किया हुआ है. 4 टीथ जो है ये एक ही जॉ का है. दिस इज़ लोअर जॉ का दिखाया गया है यहाँ पर. तो आप देखिए ठीक इसी तरह अपर जॉ में भी होता है. तो इंसीजर देखिए 4 टीथ, सामने का 4 टीथ जो है इंसीजर. इंसीजर के दोनों तरफ है कैनाइन, और कैनाइन के पीछे है प्रीमोलर, और प्रीमोलर के पीछे है मोलर. सो इनका स्ट्रक्चर, शेप, साइज भी अलग होता है बिकॉज देयर फंक्शंस आर ऑल्सो डिफरेंट. नाउ टूथ डिके. देखो बच्चे, आप लोग की तरह तरह के फूड खाते हो और ज़्यादा चॉकलेट खाना पसंद करते हो, मीठा चीज़ खाना बहुत पसंद करते हो. तो धीरे धीरे क्या होता है, हमारा जो टीथ है डैमेज होने लगता है. ठीक है, उसको कहा जाता है टूथ डिके. लेकिन ये टूथ डिके होता क्यों है? ऐसे क्यों होता है? इट इज़ अ ग्रेजुअल डैमेज ऑफ टीथ. टूथ डिके इज़ द ग्रेजुअल डैमेज ऑफ टीथ. And the main cause of tooth decay is the presence of bacteria in the mouth that grow if you don't keep your mouth and teeth clean.
and any leftover food present inside our teeth is broken down by the bacteria. As a result, an acid is released which damages the teeth. Tooth decay can cause severe pain and even toothless. Tooth decay is caused mainly because of eating food with high sugar content and soft drinks and chocolates. देखो अब हम खाना खाते हैं, रात को खाना खा के सो जाते हैं, टूथ को ब्रश नहीं करते, क्लीन नहीं करते, तो क्या होता है, हम जो फूड खाते हैं वो कुछ कुछ हमारे दांत के बीच बीच में जो स्पेस है उसमें रह जाता है, दांतों के ऊपर भी रह जाता है। तो हमारे में मुंह में कुछ बैक्टीरिया होते हैं, उस फूड में बैक्टीरिया ग्रो करते हैं और उस फूड को डाइजेस्ट करके बैक्टीरिया क्या करते हैं, उसको ब्रेक करके उससे एसिड रिलीज करते हैं। तो एसिड तो हमारे बॉडी में देखो, हमारे हाथ में भी अगर एसिड का एक बूंद गिर जाए तो जलन होती है, ठीक है। तो हम अगर मुंह में एसिड रिलीज होगा तो क्या होगा, दांत के ऊपर जब एसिड रिलीज होता है तो दांत को धीरे धीरे वो खाने लगता है, उसको डैमेज करने लगता है, ठीक है। और धीरे धीरे क्या होता है, ऊपर का जो एनामेल है वो नष्ट हो जाता है, फिर उसके नीचे वाला हिस्सा नष्ट हो जाता है, धीरे धीरे हमारा क्या होता है, अंदर की तरफ डैमेज होता जाता है, और जिससे हमको बहुत दर्द होता है। और ज़्यादा अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए तो दांत गिर भी सकता है, ठीक है। तो ये ज़्यादातर होता है जो बच्चे ज़्यादा चॉकलेट खाते हैं या फिर मीठा चीज़ खाते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं, तो इन चीज़ों को खाना है, हम मना नहीं करेंगे आपको, लेकिन इसको थोड़ा कंट्रोल में रह के खाना है, ज़्यादा नहीं खाना है, ठीक है। सो अब देखो टूथ डिके कैसे होता है, देखो आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हो। हाँ, पहले एनामेल जो वाइट कलर का ऊपर है कितना हेल्दी था, सेकंड में आप देखो धीरे धीरे एनामेल धीरे धीरे आपका डिके होने लगा, वो जो डिके वाला पार्ट है बैक्टीरिया धीरे धीरे वो जो एसिड है अंदर की तरफ जाने लगा। थर्ड डायग्राम में आप देखो, फोर्थ डायग्राम में देखो पूरा अंदर चला गया, ठीक है। जब पूरा अंदर चला जाता है, अंदर हमारा नर्व है, ब्लड वेसल से जब उसको एसिड टच करने लगता है तब हमको बहुत दर्द होना शुरू होता है, ठीक है। हाउ कैन वी प्रिवेंट टूथ डिके, ये टूथ डिके को हम कैसे प्रिवेंट करेंगे। क्लीन योर टीथ विथ ए ब्रश और डेंटल फ्लश एटलीस्ट ट्वाइस ए डे, सुबह एक बार, रात को एक बार, सोने से पहले, खाने के बाद, ये करना जरूरी है। rinse योर माउथ आफ्टर एवरी मील यू ईट। घर में आपको आपके माता पिता बोलते होंगे कि खाने के बाद आप कुल्ला करो, तो आप कुल्ला नहीं करते, ठीक है। ये कुल्ला करना बहुत ज़रूरी है, अगर करते भी तो ढंग से नहीं करते, पूरा बकल के भी ठीक क्लीन नहीं होता, ठीक है। तो आप उसको आपको ढंग से करना है। डू नॉट पुट ए डर्टी फिंगर और एनी अनवॉश्ड फूड आइटम्स इन योर माउथ। हम अगर अनवॉश्ड, उसको क्लीन नहीं है फूड हम मुंह में डालेंगे तो उसमें बैक्टीरिया है, दैट बैक्टीरिया विल स्टार्ट ग्रोइंग और फिर वही एसिड रिलीज करेगा, वही प्रॉब्लम होगा, ठीक है। सो इसी तरह हम अपना टूथ डिके को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। अभी हमारा टोंग का काम क्या है। टोंग इज ए मस्कुलर ऑर्गन एंड हेल्प यू टू ईट द फूड। टोंग का मेन काम है, मैं आपको बता भी चुकी हूँ कि सालाइवा के साथ जो फूड मिक्स होता है उसको हेल्प करता है टोंग मिक्स करने में और फूड को निगलने में, शैलो करने में हेल्प करता है। एंड उसके अलावा हमारे टोंग में टेस्ट बर्ड्स होते हैं, आप टेस्ट और टोंग को छुओगे तो आपको ये आपका मतलब सम रेज्ड स्ट्रक्चर्स दिखाई देगा। तो ये सब में आपका टेस्ट बर्ड होता है और टंग के वजह से हम फूड का टेस्ट भी पता कर सकते हैं, ठीक है। तो टंग का फंक्शन क्या है, मिक्सिंग द सलाइवा विथ फूड एंड सैलोइंग द फूड, एंड दूसरा फंक्शन है टेस्टिंग द फूड, ओके। सो हियर देखो कहाँ पर कौन सा टेस्ट हमको पता चलता है, ये टोंग है। आप देखो सबसे टीप में पूरा आगे हमको क्या पता चलता है, स्वीट। टोंग के दोनों तरफ जो टेस्ट बर्ड है उनका काम क्या है, सॉल्टी, और पीछे की तरफ जो दोनों तरफ है शाउर खट्टा, और पीछे ऊपर पीछे बिटरनेस। तो टोंग में हमारे टेस्ट बर्ड इसी तरह डिस्ट्रीब्यूट हुआ है और सारे टेस्ट बर्ड का अलग अलग काम है, डिफरेंट टेस्ट को वो टेस्ट करते हैं, ठीक है। सो दिस इज हाउ द टेस्ट बर्ड्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन आवर टोंग। Now experiment to show the effect of saliva on starch.
अभी हम आपको एक एक्सप्लेन करेंगे एक्सपेरिमेंट, जिसमें हम आपको बताएंगे कि सलाइवा स्टार्च को कैसे डाइजेस्ट करता है। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, 2 टेस्ट ट्यूब लेंगे। टेस्ट ट्यूब ए में हम क्या लेंगे, बॉइल्ड राइस, पका हुआ चावल लेंगे। टेस्ट ट्यूब बी में हम क्या लेंगे, राइस लेंगे, बॉइल्ड राइस, लेकिन हम उसको च्यू करेंगे। च्यू करने से क्या होता है, सलाइवा मिक्स हो जाता है। उसको 3 से 5 मिनट अगर च्यू करेंगे तो उसमें सलाइवा मिक्स हो जाएगा। तो हमने एक टेस्ट ट्यूब में लिया बिना च्यू किया हुआ चावल, जिसमें कि सलाइवा नहीं है, और दूसरे में बॉइल्ड राइस लिया, जिसको कि हमने च्यू किया, मतलब उसमें सलाइवा है। ओके, उसके बाद दोनों टेस्ट ट्यूब में हम क्या करेंगे, 2 to 4 ml ऑफ वाटर ऐड कर देंगे। ठीक, अभी उसके बाद हम क्या करेंगे, 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सोल्यूशन ऐड करेंगे दोनों टेस्ट ट्यूब में। तो आयोडीन क्यों टेस्ट ट्यूब में ड्रॉप ऐड करेंगे, आयोडीन ऐड करने से हमको पता चलता है स्टार्च है कि नहीं। अगर स्टार्च है तो आयोडीन स्टार्च को ब्लू ब्लैक कलर में कन्वर्ट कर देता है। स्टार्च वाइट कलर का होता है, अगर आयोडीन ऐड करेंगे तो स्टार्च अगर होगा तो वो ब्लू ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर स्टार्च नहीं होगा तो वो ब्लू ब्लैक नहीं होगा। तो हम जब टेस्ट ट्यूब ए में हमने क्या लिया, बॉइल्ड राइस, सिर्फ बॉइल्ड राइस लिया हमने। उसमें जब हम आयोडीन ऐड करते हैं तो देखा जाता है कि उसमें ब्लू ब्लैक कलर डेवलप करता है। इसका मतलब क्या है, उसमें स्टार्च है। लेकिन जब हम बी में जब ऐड करते हैं आयोडीन तो उसमें कोई कलर चेंज नहीं होता। इसका मतलब क्या है, उसमें स्टार्च नहीं है। तो हमने तो दोनों में बॉइल्ड राइस लिया था, फिर एक में क्यों स्टार्च है, दूसरे में स्टार्च क्यों नहीं है। इसका मतलब है कि ए में हमारा सलाइवा नहीं था, इसीलिए वो स्टार्च को डाइजेस्ट नहीं किया, इसलिए स्टार्च एज इट इज रहा। हमने जब आयोडीन ऐड किया तो स्टार्च ब्लू ब्लैक कलर हो गया। लेकिन बी में हमारा सलाइवा ऐड हो गया था बाय च्यूइंग, तो अभी सलाइवा ने क्या किया, सलाइवा में जो जूस था उसने स्टार्च को डाइजेस्ट कर दिया, और अभी स्टार्च नहीं रहा। इसीलिए हमने जब आयोडीन ऐड किया तो उसमें ब्लू ब्लैक कलर नहीं आया। तो इससे क्या पता चलता है कि सलाइवा स्टार्च को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। देखो ये डायग्राम है, देखो ए है, ए में हमने स्टार्च लिया था, सिर्फ स्टार्च, हमारा सलाइवा मिक्स नहीं हुआ था, तो उसमें हमने जब आयोडीन ऐड किया तो वो ब्लू ब्लैक कलर आ गया। लेकिन बी डायग्राम में देखो आप, टेस्ट ट्यूब में हमने स्टार्च लिया था, उसके साथ सलाइवा मिक्स हुआ था, लेकिन हमने जब आयोडीन ऐड किया तो उसमें कोई कलर चेंज नहीं हुआ। ठीक है, तो इस सेशन में यहाँ तक रहने देते हैं। नेक्स्ट सेशन में रेस्ट ऑफ दिस चैप्टर आई विल डिस्कस। ओके, टिल देन थैंक यू।